Namaste Gurukulians, class 11th. How are you beta? I hope you will be fit and fine at your home and you are doing your study along with us by these video lectures. So let us start third chapter of microeconomics. The name of the chapter, Consumers Equilibrium Utility Analysis. Consumers Equilibrium Utility Analysis. Consumers Equilibrium Utility Analysis. तो let us start first. सबसे पहले हम start करते हैं who is a consumer. तो consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her want. ये आपने पहले चैप्टर में भी किया था. Who is a consumer, who is a producer. In producer you will read the producer equilibrium. In consumer we are doing consumer equilibrium. तो what is the consumer equilibrium? ये consumer equilibrium होता क्या है? Consumer is in equilibrium when he plan his income in such a manner that he will get maximum satisfaction out of his given income by the given prices. यानी कि वो अपनी इनकम को इस तरीके से एडजस्ट करे मार्केट प्राइसेस को देखते हुए कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इसे क्या कहा जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो हु इज़ अ कंज्यूमर? आई टोल्ड यू, मैंने आपको अभी बताया कि कंज्यूमर क्या होता है. नाउ हेयर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये भी मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया. व्हाट इज़ यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी is known as utility. Want satisfying power of a commodity is known as utility. So you will see consumption of goods and services leads to satisfaction of human wants. You consume a cup of tea. आप क्या कंज्यूम करते हो? कप ऑफ टी कंज्यूम करते हो. You get some satisfaction. आपको इससे अंदर कुछ satisfaction मिलती है. तो व्हाट इज़ दिस? दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. इसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है. सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. यानी कि यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज, यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड. जो सेटिस्फेक्शन क्या होती है? मिलती है. किससे मिलती है? फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी को क्या करने से? कंज्यूम करने से. तो दिस इज़ नॉन एज यूटिलिटी. उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी. तो लेट अस स्टार्ट आवर कंसेप्ट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इट मीन्स कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट इट मीन्स विच इज़ मेजर इन नंबर्स. जिसे किस में मेज़र किया जाता है? नंबर्स में. एंड ऑर्डिनल इज़ दैट विच इज़ नॉट मेज़र इन नंबर्स. जिसे नंबर्स में जो है वो मेज़र नहीं किया जाता है. इट मीन्स यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड. इसमें यूटिलिटी को क्या किया जाता है? रैंक दिया जाता है. इट मीन्स हाई और लो. और जो कार्डिनल होती है उसको हम नंबर्स में मेज़र करते हैं लाइक 1 2 3. दिस इज़ द मेन डिफरेंस. ओके बेटा. इन थर्ड चैप्टर वी विल रीड द cardinal measurement of utility and in fourth chapter we will do ordinal measurement of utility. So difference I told you, that is measured in numbers and that is measured in ranks. This we will do in chapter third and this we will do in chapter fourth. ये किसकी अप्रोच है? This is a Marshall's concept. और ये जो है ये हम chapter 4 में करेंगे. ये किसकी अप्रोच है? ये हिक्स की अप्रोच है. ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फेक्शन कैन बी बट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो एंड इट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट और यूटिल्स. ये उसको यूनिट्स और यूटिल्स में जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता है. तो आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी. Marshall believes that we can measure satisfaction in the terms of cardinal number 1 2 3
The standard unit of measurement used by the marshal for utility is called utils. And when you consume 2 cups of tea, you can express satisfaction equal to 2 utils or 3 utils. This is known as cardinal measurement of units. यानी कि जिसमें हम utils में measurement करते हैं, that is known as cardinal utility. और ordinal, I told you, you cannot be expressed in the terms of unit. What you can say? A cup of tea gives you greater satisfaction than a cup of coffee. It means higher or lower. यानी कि a cup of tea ज़्यादा satisfaction आपको जो है वो provide कर रहा है किससे? A cup of coffee से, या cup of coffee जो है वो आपको ज़्यादा satisfaction दे रहा है किससे? Cup of tea से. Is it clear? Now I am telling you the concept of total utility and concept of marginal utility. तो आई एम टेलिंग यू फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है एंड सेकेंड टोटल यूटिलिटी. फर्स्टली आई विल टेल यू द मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. तो इट मीन्स इट रेफर्स to additional. Marginal means additional. It refers to additional utility on account of किस account of what? Of consumption of an additional unit of commodity. Consumption of an additional unit of commodity. It means additional unit को consume करने से additional unit of commodity. एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. एंड टोटल यूटिलिटी, it is the sum total of utility derived from consumption of all the units of a commodity. It is total utility. It is sum total of utility derived from all the consumption units of a commodity. It is the sum total of utility. It is the sum total of utility derived from consumption of all the units. Sorry beta. Consumption of all the units. Consumption of all the units of commodity. So this is total and this is marginal. तो आई विल एक्सप्लेन यू, दिस इज़ ओनली द डेफिनेशन. मैं आपका उसका एग्जाम्पल भी देती हूँ. सपोज मार्जिनल यूटिलिटी, यू कंज्यूम 10 यूनिट्स. आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की? 10 यूनिट्स. उससे यूटिलिटी मिली 100 यूटिल्स. और एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की 11th यूनिट, उससे यूटिलिटी मिली 105 यूटिल्स. तो व्हाट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी? एडिशनल यूटिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 5 util. तो आई एम टेलिंग यू, यू कंज्यूम 10 यूनिट्स. 10 यूनिट्स कंज्यूम की, यूटिलिटी मिल रही है 100 यूटिल्स. दिस इज द टोटल यूटिलिटी क्योंकि आपको 10 से मिल रही है 100 यूटिल्स. 11th यूनिट यू कंज्यूम, 11 यूनिट्स कंज्यूम की, तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 105 यूटिल्स. तो इट मीन्स additional utility is marginal, that will be TUN minus TUN minus 1.
इट मीन्स दिस इज TUN एंड दिस इज TUN -1. इससे पहले वाली थी, यानी कि ये 11 यूनिट से मिलने वाली और ये 10 यूनिट से मिलने वाली. इट मीन्स 105 - 100. एडिशनल इज 5 यूटिल्स एंड टोटल दैट इज फ्रॉम फर्स्ट यूनिट यू आर गेटिंग यूटिलिटी 10 यूटिल्स. आपने 1 यूनिट कंज्यूम की, उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही है फर्स्ट यूनिट से. फर्स्ट यूनिट यू कंज्यूम, यूटिलिटी मिल रही है 10 यूटिल्स. सेकेंड यूनिट से मिल रही है 8, तो टोटल कितनी हो गई 10 + 8 18. दिस इज नॉन एज व्हाट, टोटल यूटिलिटी. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस इजीली इन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी बाय द डायग्राम आई एम टेलिंग यू और बाय द स्केड्यूल आई एम टेलिंग यू. एक होता है बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. As more as the standard unit of commodity are continuously consumed, the marginal utility derived from each and successive unit must be declined. It means किसी भी चीज़ की आप स्टैंडर्ड यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन. तो आई एम टेकिंग वन स्केड्यूल एंड आई विल मेक द डायग्राम. तो आई एम टेकिंग वन स्केड्यूल, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X, कंजम्पशन ऑफ commodity X. So I am taking 1, 2, 3, 4 and 5. This is total utility derived from X commodity and this is marginal. I am taking suppose marginal. So I am taking first commodity he is consuming, getting 100 utils. From second 90, third 80, fourth 70 and fifth 60. So this is marginal utility which derive by consuming additional unit and total 1 is 100. अगर वो 2 तक कंज्यूम करता है 190, 3 तक 270, 4 तक 340 और then 400. This is clear beta? I hope you can understand this concept. Diagram I am making, on X axis you will take consumption of commodity X, consumption of commodity X, that is 1, 2, 3, 4 and 5. And now I will show TUX and MUX in a combined diagram. And MUX, total utility and marginal utility derived from, so maximum 400, minimum 100. 100, 200, 300, 400. So you will see from first MU I am taking, that is 100. Next 90. Next इससे थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे, that is 80. Next 70 and next 60. It means मैंने सारा 100 से नीचे रखा. तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. और अगर मैं इसे 50 से ले लेती, इफ़ आई विल स्टार्ट फ्रॉम 50 तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहता, बट मैंने यहाँ से भी इसे क्या कर दिया, कवर कर दिया. इट्स अकॉर्डिंग टू योर विश. MUX एंड TUX आई एम स्टार्टिंग 1 पे 100, 2 पे 190, 3 पर 270 एंड 4 पर 340 एंड एट 5 this is 400. So this is TU, total utility derived from the consumption of X commodities. Now I am telling you the units consumed by units X commodity की जितनी units जो हैं वो consume की हैं उससे मिलने वाली क्या है, total utility. Next is relationship between TU and MU. This is a simple but for a relation, if you have to show the relation, you will make a other table. I am telling you that table. मैं आपको वो table बताती हूँ. Because in that table, I will show you the different unit consumed. Unit consumed. अब जब मैंने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0. जब मैंने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया
unit consumed, I am taking unit 0. It means marginal utility initial and total utility 0. I know law of diminishing marginal utility will be applicable here. So you will write 1, 2, 3, 4, 5, 6. आफ्टर दैट आई विल मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, यूटिलिटी मिली 8. अब मैं सेम टाइम पे कॉन्टीन्यूटी में, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी एप्लीकेबल होगा, यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड एंड कंजम्पशन शुड बी कॉन्टीन्यूस. अगर ये नहीं होंगी तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द एजम्पशन. ये इसकी क्या है, एजम्पशन है. फर्स्ट यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड, only standard unit of commodity are consumed and consumption of commodity is continuous. क्या होनी चाहिए, continuous होनी चाहिए. तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, मैंने फर्स्ट बर्गर खाया, सपोज मुझे यूटिलिटी मिली 8, सेकंड से मिली 6, फिर 4, फिर 2. अब पेट भर चुका है तो 0. अगर मैं फिर भी ज़बरदस्ती खाऊंगी तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव. इट मीन्स टोटल यूटिलिटी आई एम मेकिंग 8 and 6, 14, 18, 20, 20 and 18. तो फर्स्टली आई विल टेल यू द रिलेशन, देन आई विल मेक द डायग्राम. TU निकालने का फॉर्मूला क्या रहा, समीशन MU. मैंने MU से जोड़ कर TU जो है वो निकाल दिया. तो दिस इज MU इज इक्वल टू TU इज इक्वल टू समीशन MU. व्हेन MU इज पॉजिटिव, जब MU पॉजिटिव है TU इंक्रीजेस. TU क्या है, बढ़ रहा है. When MU is 0, TU is maximum. जब MU क्या है, 0 है, TU क्या है, maximum है. And when MU is negative, जब MU क्या है, negative है, TU starts declining. Decreasing MU, जब MU घट रहा है, TU increasing at a diminishing rate. TU बढ़ रहा है, but कौन से रेट से, diminishing rate से. तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. अब इसके बीच में एक पॉइंट और आता है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन एंड पॉइंट ऑफ स्टेटिटी. आई विल शो यू बाय दिस डायग्राम. मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ. आई एम मेकिंग है 2 डायग्राम कंबाइन. दिस इज TU, टोटल यूटिलिटी ऊपर दिखाएंगे. दिस इज MU. ठीक है, X यूनिट आई हैव टेकन, तो आई विल राइट हेयर X, नो प्रॉब्लम. So I am taking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also I am taking 1. Same I will show. Marginal utility 8, 4, 2, 0, minus 2. So I am taking here 2, 4, 6, 8 and 10. Or minus 2 I will show. So at 1, this is 8, then 6, then 4, then 2, then 0, then minus 2. So this is MUX. Marginal utility derived by the X commodity. अगर मैं यहाँ पर X दिखा रही हूँ तो I will write here X, otherwise no need to write. MU, marginal utility, जो मैंने यूनिट कंज्यूम की उससे क्या मिल रही है, यूनिट कंज्यूम्ड और क्वांटिटी जो मैंने कंज्यूम की, तो यू कैन राइट ओवर देयर. तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी X एक्सिस पर, दैट इज़ अ क्वांटिटी इन यूनिट्स. क्वांटिटी इन यूनिट्स. The same here I will write over the quantity in units. Now TU. अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे TU दिखाना है. तो let us start. TU is maximum. TU कितना है maximum, 20. तो what I am doing, I am taking a gap according to my convenient. I am taking 4, 8, 12, 16 or 20. तो at first 0, at 0, first this is 8, then 14, then 18, then 20, then 20, then 18. So this is TU, total utility. तो what is the point of saturation? अब saturation का point जो है वो क्या है, जहाँ पर आपकी TU मैक्सिमम और MU 0 हो जाती है,
This is the point of staticity or point of saturation. This is known as point of staticity or point of saturation. इसे क्या कहते हैं? Point of saturation or point of staticity. Now this is a diagram. You will see it carefully and make the relation. जब mu पॉजिटिव है तो Tu increases, mu 0, Tu maximum, mu negative, Tu start declining. Now beta, if you are facing any problem, you can take your problem on WhatsApp. Thank you beta. Thank you so much.